नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूँ द सक्सेस मंत्रा में। आज हम चर्चा करेंगे जिस बुक का उसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस। ओलिवर नेपोलियन हिल वाज एन अमेरिकन सेल्फ हेल्प ऑथर। उन्हीं की ये बुक है नेपोलियन हिल का, और ये बहुत अच्छी बुक है। और इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या है, और आप मेन पॉइंट्स जो भी है उसको लिख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्शन, टेकिंग एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको ध्यान में रखते हुए वी विल समराइज दिस बुक इन पॉइंट्स। सॉरी। नेपोलियन हिल वाज बोर्न इन वाइज काउंटी, वर्जीनिया. He began his writing career at age 13 as a mountain reporter for a small town newspapers, and went on to become America's most beloved motivational author. His work stands as a monument to individual achievement and is the cornerstone of modern motivation. यूट्यूब में देखते हैं कि नेपोलियन हिल कैसे छाए रहते हैं, उनका मोटिवेशन ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में। तो do not underestimate this value due to its simplicity. Your definite chief aim क्या है? Define your definite chief aim, or do not underestimate this value due to its simplicity. You need to set an objective before you can achieve it. Not having a solid aim to focus on cannot possibly get you to it. Without solid aim, you cannot achieve anything. You have to know what you want to start receiving it. मतलब आपको पहले जानना है कि आप क्या स्टार्ट करने वाले, रिसीविंग, प्राप्त जो भी आप करने वाले हैं वो आपको पहले से जानना चाहिए। सॉरी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ सक्सेस एंड दैट यू कैन अटेन इट। क्या वर्दी, सक्सेस के लिए आप कैपेबल, यू आर वर्दी, एंड दैट यू कैन अटेन इट, आप प्राप्त कर सकते हो उसको। विदाउट दिस सिंपल अंडरस्टैंडिंग, truly understanding it, you will probably get nowhere with most of your goals. जब तक कि आप नहीं समझेंगे आप कहीं नहीं जा सकते। If you are not confident, then you cannot sell yourself in life. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। चौथा जो इसका मेन है, द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इनिशिएटिव एंड लीडरशिप. Stop trying to get a Cadillac if you feel more comfortable paying for a Ford. You are on the path to easily afford a Cadillac. You have to build authority in your field of interest to rise to prominence. तो आपको अथॉरिटी डेवलप करना, बिल्ड करना पड़ेगा यदि आप अपने फील्ड के जो इंटरेस्ट है आपका उसमें आप प्रोमिनेंस तक पहुंचना चाहते हैं, ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। You should be solid representative of your agenda and initially promote your views. Understand your role in delivering something that your industry is deprived of and take the necessary steps.
जो भी आपका इंडस्ट्री में नहीं कर रहा, वो आप पहुंचाने तक अपना जो योर रोल इन डिलीवरिंग समथिंग आप जो देने वाले हैं, वो उसको अंडरस्टैंड कीजिए अपने रोल को एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स. इमेजिनेशन. Dream and use your imagination to help lead you to attainment of your goals. तो अपनी इमेजिनेशन का यूज करें गोल को प्राप्त करने के लिए. The making good decision come with use and your intuition will always lead you forward your dream. आपको ड्रीम प्राप्त करने में मदद करेंगे. ड्रीम एंड एक्शन आर क्लोजली रिलेटेड. ड्रीम देखिए, एक्शन लीजिए, ड्रीम देखिए, एक्शन लीजिए. Enthusiasm. This life lesson is in line with the idea of getting into the right frame of mind. आपको right frame of mind में रहना बहुत जरूरी है. Such behavior will help you when establishing contacts with strangers and laying out your plans. तो ये आपको मदद करेगा स्ट्रेंजर से कॉन्टेक्ट में और अपना प्लान लेइंग आउट करने के लिए. Sorry. Enthusiasm is vital when forming that bond, which could be the start of something lucrative and mutually prosperous. तो enthusiasm बहुत जरूरी है. Influence others by being energetic and persistent. अदर जो इन्फ्लुएंस होंगे आपके एनर्जेटिक और परसिस्टेंस. सेल्फ कंट्रोल. Without the right control, all the previous laws will wear no meaning. जब तक राइट कंट्रोल नहीं हुआ तो कोई लॉ काम नहीं करेगा. So it is of utmost importance that you have some self-discipline and rationality. Overwhelming enthusiasm is not good either. तो ओवरवेलमिंग enthusiasm भी अच्छा नहीं है. So you better have that हैंड ब्रेक क्लोज बाय योर साइड. तो ब्रेक भी उस पर लगाने आना चाहिए आपको. सेल्फ कंट्रोल मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. सेल्फ कंट्रोल जो है मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी है, तो आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. इफ यू आर गोइंग नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर. जितना आपको पे होता है उससे आप ज्यादा करके दीजिए. इफ यू आर गोइंग टू whine about your work, then you are not going anywhere. Do the work you have in front of you, then ask what else you may do. जो भी काम आपके सामने पहले उसको पूरा करें. then ask for what you may do. what जो else आप क्या कर सकते हैं उसके लिए. by doing this you make yourself valuable and you will surely reach a point where you are being paid handsomely. तब आप हैंडसमली पे होंगे जब आप जितना आपको पे किया गया उससे आप ज्यादा काम करके दें उनको. तो valuable implies are valuable. This is also especially 100% true when you are working for yourself. जो valuable employee हैं always valuable होते हैं. Have one इसमें मेन पॉइंट है pleasing personality and accurate thought. Have one. Don't point things out on people. Don't hang your head and say I'm tired. नहीं बोलिया. Mediocrity does not care if you are pleasant or not. Success does. तो प्लीजेंट रहना बहुत जरूरी है. और प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए एंड एक्यूरेट थॉट होना
सही था थॉट। एक्यूरेट थॉट में सम फैक्ट्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन, सॉरी, शॉर्ट फैक्ट्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स इंफॉर्मेशन से फैक्ट्स को शॉर्ट कीजिए। एंड यूज ऑटो सजेशन इन कंजक्शन विथ फोकस्ड थॉट, फोकस थॉट आपका जरूरी है, उसमें से यूज कीजिए ऑटो सजेशन। कंसंट्रेशन इज, इसमें मेन पॉइंट है कंसंट्रेशन एंड फेल्योर। कंसंट्रेशन इज द एक्ट ऑफ फोकसिंग द माइंड अपॉन ए गिवन डिजायर until ways and means for its realization have been worked out and successfully put into operation, that about covers it। तो गिवन डिजायर है उस पर कंसंट्रेशन आपका बहुत जरूरी है, जब तक वो आपको वेज एंड मीन्स उसका नहीं मिल जाता है रियलाइज करने का, फोकस कीजिए उस पर। फेल्योर, यस, फेल and be happy that it is bringing you one step closer to success। फेल्योर बहुत अच्छा चीज होता है, बहुत लोग इसको हेट करते हैं, और जो लोग हेट करते हैं वो कभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, अपना जीवन का जो उनका पोटेंशियल है उसके ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि फेल्योर के डर से वो कुछ नया या चैलेंजिंग या बड़ा काम इनिशिएट नहीं करते। वो ऐसा काम करेंगे जिसमें फेल्योर का चांस नहीं है, और कोई भी बड़ा काम है बिना फेल्योर के होता नहीं। आप एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, चार बार फेल होंगे, जीवन में आपको बहुत फेल्योर मिलेगा अगर आप उतना चीज ट्राई कर रहे हैं। फेल्योर किसको मिलता है? जो बार बार नया चीज ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है, उसको मिलता है। ना कि कोई जीवन में कोई किसी से मिलिएगा जीवन में कुछ नहीं करता तो उसको करे, वो आदमी करेगा कुछ नहीं, दिन भर इधर उधर टहलते आपको मिलेगा, लेकिन उसका कोई फेल्योर नहीं होता क्योंकि वो कुछ ट्राई नहीं करता। फेल्योर किसको मिलता है? जो जिसका जो गोल होता है उसके कैपेबिलिटी से बड़ा होता है, या कुछ बड़ा वो प्राप्त करने का कोशिश करता है, तो उसको फेलियर होता है। फिर फेलियर से वो सीखता है, वो क्लोजर जाता है सक्सेस के। अच्छा, इस ढंग से नहीं होगा, इस ढंग से नहीं होगा, इस ढंग से नहीं होगा, फिर वो पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो जो लोग बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनका आप बायोग्राफी पढ़िए, पता चलेगा कि वे लोग कितनी जीवन में अनसक्सेस हुए हैं, कितना स्ट्रगल किए हैं, तब जाकर वहां तक पहुंचे। जो लोग कुछ करते नहीं उनको कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, वो डायरेक्ट सक्सेस है। Yes, fail and be happy that it is bringing you one step closer to success। Failure is inevitable, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्यों? वही सक्सेस का रास्ता वही है, सीढ़ी वही है। And it is a great step in the right direction। Replace failure with temporary defeat। फेल्योर को टेम्पोररी डिफीट बोलते हैं। तो की मैसेज क्या है इस बुक का कि imagination is the key to mastering all the other lessons along the way। That way you can also use your imagination to rearrange old ideas into new combinations। Turning your ideas into reality requires not only imagination but also the right attitudes। तो इसलिए उसके बाद है टेक एक्शन। एक्शन आपको बहुत ज़रूरी है। सब लॉ ऑफ सक्सेस जान गए, लेकिन उसको अप्लाई करना इम्पोर्टेंट है। सक्सेस इज वेरी लार्जली अ मैटर ऑफ एडजस्टिंग वन सेल्फ to the ever varying and changing environments of life in a spirit of harmony and poise। तो इस तरीके से ये बुक का प्रेजेंटेशन था, द लॉ ऑफ सक्सेस। तो ये आपको आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा? इफ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन प्लीज लाइक वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड
share with friends and on social media. We will meet in next episode with new book. तब तक के लिए नमस्कार.